Hi everybody, good morning. और गुड मॉर्निंग सभी को। And we've had such a lovely morning with the presence of God with us. और आज की सुबह कितनी अद्भुत रही परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में। And I pray that even as the word is being shared, you will experience him and know him. और जैसे वचन को बांटा जाएगा, मेरी उम्मीद है कि आप परमेश्वर को यहाँ पर महसूस करेंगे। My message today is on hope. और आज जो मेरे वचन का शीर्षक है वो है आशा। I think that when we see what is happening around us, we need hope. और जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है तो हमें आशा की जरूरत है। In this amazing, wonderful, and yet very wounded world, और ऐसे अद्भुत, शानदार और जख्मी संसार में every day there is a new wave of news that's disheartening. और ऐसी खबरों की लहर आती है जो आपके दिल को तोड़ देती है। And we are so powerless to help. We are so powerless to help. और ये इतना कमजोर जैसे लगता है, इसके अंदर सामर्थ्य नहीं, ताकत ही नहीं। How do you comfort 241 families who lost their loved ones in the air crash? और 241 लोगों का जो परिवार उजड़ गया है, उनको कैसे आप समझाओगे, कैसे दिलासा दोगे? And what do you say and what do you do when you hear of the Iran and the Israel war and civilians being killed? Civilians are people like you and me. They are being killed. और ईरान इजराइल की जो जंग चल रही है उसमें जो जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो मारे जा रहे हैं। We need hope. हमें आशा की जरूरत है। And we have hope in Jesus. और हमें आशा है प्रभु यीशु मसीह में। Do you have hope? क्या आपके पास आशा है? What do you have hope for? आपके पास आशा किस चीज के लिए है? Think about it. सोचिए उस बारे में। Because sometimes we do feel hopeless with what happens around us. और जो हमारे आसपास हो रहा है उसको देखकर हो सकता है कि हम निराश हो जाते हो। My text for today is from Isaiah 60 verse 22. और आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है यशायाह की किताब, उसका 60वां अध्याय 22वां वचन। And it is written, और ये लिखा है, a little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. यशायाह की किताब 60वां अध्याय 22वां वचन। उनमें से छोटे व्यक्ति से कुल बनेगा, सबसे दुर्बल मनुष्य से शक्तिशाली राष्ट्र का उद्भव होगा। मैं प्रभु हूं, ठीक समय पर मैं उसे अविलंब पूरा करूंगा। Let's just bow our heads and pray. आइए अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करें। Father God, we want to thank you for the riches of your words to us, which give us hope. And I pray that each one here today will know that this word is for them. I pray and I ask this Holy Spirit, come and do a deeper work than what I can do from here. I pray that, do it in the hearts of your people. In Jesus' name I pray. Yeah, okay, that's okay. Okay. So this word is for us. ये जो वचन है ये हमारे लिए है। And the word of God is an amazing word. और परमेश्वर का वचन बड़ा अद्भुत वचन है, which fortifies us to go forward. और जो हमें मजबूत करता है आगे जाने के लिए। It's a powerful weapon we have. और ये काफी शक्तिशाली हथियार हमारे पास है। And with his word we can fight the fiery darts of the enemy. और हम जो है शत्रु के दुश्मन के छोड़े हुए तीरों से लड़ सकते हैं। So the enemy can say to you, you are useless, you have no purpose. और इसलिए शत्रु है वो आपसे ये कहता है कि तुम जो है निकम्मे हो, किसी काम के लायक नहीं हो। But you can fight and say, I am a son of the Most High God. और फिर आप उससे कह सकते हो मैं सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का बेटा हूँ। The enemy says you are worthless, but the word of God says you are a jewel he holds in the palm of your hand. और शैतान आपसे कहेगा कि आप किसी काम के नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, पर आप उसको परमेश्वर के वचन से कह सकते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूँ। And you may think, the enemy might say to you, you will never be able to do it. और दुश्मन आपके मन में ये कह रहा होगा कि तुम इसको नहीं कर पाओगे। But the word of God says, I can do all things in Christ who strengthens me. Amen. पर प्रभु का वचन कहता है मसीह में वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And this is the way we fight. और इसी तरीके से हम लड़ते हैं। Those hellish, destructive thoughts
और ये जो विनाश वाले जो विचार आते हैं आपके मन में, those patterns that suddenly come to bring us down. और ये जो शैलियां जो बन चुकी है आपके दिमाग में, वो आपको नीचे गिराती हैं, And we use His word और हम उसके वचन का इस्तेमाल करते हैं and focus on His heavenly goodness, और उसकी जो स्वर्गीय भलाई है उसके ऊपर all अपना that ध्यान He लगाते हैं, has for us. उन सारी बातों के लिए जो उनके पास हमारे लिए है। A little one can become 1,000, छोटे से छोटा व्यक्ति कुल बनेगा, a small one, a mighty nation. और जो दुर्बल व्यक्ति है और जो छोटा है उससे एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। Today, as you sit here, can you think this about yourself? और जैसे आप यहाँ पे आप कुर्सियों पे बैठे हैं, क्या ये आप अपने बारे में सोचेंगे? Can you be 1,000? क्या आप 1000 बनेंगे? Can you be a strong nation? क्या हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेंगे? I can only see one hand go up. मुझे सिर्फ एक ही हाथ ऊपर दिखा, But you know, और आपको God, पता है, God is calling you to that. और परमेश्वर आपको इस सब के लिए बुला रहे हैं। And when you say it, you are reinforcing the और truth of God's word. और जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, Can you see it? क्या आप उसको देख पा रहे हैं? No, you cannot. नहीं, You cannot see it right now. अभी उसको आप नहीं देख सकते। Can you believe it? क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? Yes, yes, you can. हाँ, आप कर सकते हैं। Why? क्यों? Because we have amazing proof from the Bible. क्योंकि हमारे पास बाइबल में इससे जो है अद्भुत तरीके से इसको साबित किया गया है, सबूत है। Many Bible men of God, they didn't see the evidence of things, but they yet believed. और वो देखते कि उन्होंने प्रमाण नहीं देखा उन चीजों के, पर फिर भी उन्होंने विश्वास किया। Our father Abraham, हमारे पिता इब्राहिम, he's in Romans 4:19 it says that that Abraham he faced the fact that his body was dead. और रोमियो की किताब में ये कहता है कि इब्राहिम ने इस बात को जान लिया था कि उसका जो शरीर है वो मर चुका है, But he did not waver with unbelief at the promise. पर उसने परमेश्वर के वायदे के ऊपर अविश्वास नहीं दिखाया। He did not waver. उसने उसको से जाने नहीं दिया। Even Hosea, होसिया के बारे में, he lived in one of the most darkest periods of Israel's history, और इस्राएल के इतिहास में सबसे अंधकार वाले समय में रहा, where they were being oppressed by foreign empires. और विदेश सल्तनत द्वारा उनको सताया गया, दबाया गया। And you know what Hosea tells Israel, what God tells Hosea to tell Israel? और आप जानते हैं परमेश्वर ने होसिया को क्या कहा इस्राएल को कहने के लिए? He says, I can turn this valley of trouble into a door of hope. और वो ये कहता है कि इस तकलीफ भरी घाटी में से मैं उम्मीद के शहर में प्रवेश करूंगा। Just like I brought you out from Egypt in the days of the Exodus, I can do it now. और निर्गमन के दिनों में जिस तरीके से मैंने तुम्हें मिस्र देश से गुलामी में से निकाला, And can he do it now for us? क्या वो आज हमारे लिए करेंगे? Can he do it? क्या वो करेंगे? Yes, he can. हाँ, वो कर सकते हैं। Why? Why do we know this? क्यों? कैसे हम जानते हैं? Because it's because of his faithfulness. क्योंकि उनकी विश्वास योग्यता के जरिए, It's only because of God's character and his faithfulness that we read about. और परमेश्वर के चरित्र के बारे में और उसके विश्वास योग्यता के बारे में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, That we can believe he can do it now. अगर वो चाहे तो वो इसे अभी तुरंत कर सकते हैं। So we look forward और जिस तरीके से हम आगे देखते हैं, by looking backward, पीछे देखते हुए, trusting nothing but in who God is. और किसी बात पे भरोसा नहीं करते हुए बल्कि इस बात पे पुख्ता भरोसा करते हुए परमेश्वर पे, He is good. वो भला है, He's a promise keeper. वो अपने वादों को He's पूरा a करता way है maker. और वो रास्ता बनाता है, He can do it. वो कर सकता है। 1,000 of you, आप में से हजारों, a strong nation, एक मजबूत राष्ट्र, the key ingredient we need, और ऐसे को जो बढ़ाता है hope. वो जो आशा को लेकर आता है, Hope in what he can do for you. और आशा उन बातों में जो वो आपके लिए कर सकता है। But however, पर जैसे we all have hope, right? हम सभी के पास आशा है, उम्मीद है, But in the hoping, we have to wait. और वो आशा का रखने का जो समय है We- उसमें हमें इंतजार करना है, We have to wait हमें रुकना है, इंतजार करना है, because we know God only can bring about this future.
क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर उन बातों को पूरा करेगा। He can only bring out this future that will be as surprising as a crucified Jesus who rose again. और उसी बात के जैसे जिसे जो मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया था, उसी मसीह को परमेश्वर ने वापस से जिलाया। Do you know you have hope? क्या आपको पता आपके पास आशा है? Do you have hope for your dead situation? क्या आपके पास आपकी मरी हुई परिस्थितियों के लिए आशा है? Can he bring it to life? क्या वो आपकी मरी हुई परिस्थितियों को जिंदा This कर is सकता है? Christian hope. ये एक क्रिस्ती आशा है, We मसीह look, आशा है। our hope is only in the resurrected Jesus. और हम विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। To move forward, we only see the risen Christ और आगे बढ़ने के लिए हम उस जिंदा मसीह की ओर देखते हैं, because क्योंकि we know हम जानते हैं the tomb is empty. क्योंकि कब्र खाली है। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं The है? tomb is empty. कब्र खाली है। The whole world knows it. पूरा संसार इस बात को जानता है। Yeah. So what is hope? और ये है उम्मीद, आशा। Hope is an expectation of something cheerful. और आशा जो है एक आनंद भरी चीज की अपेक्षा करते, एक उम्मीद होती है। It's an expectation that things are going to happen. और इन सारी बातों की अपेक्षा है कि वो चीजें होने वाली हैं। It's an anticipation of, something good and happy that is going to make me happy. That's why I hope for things. और इसलिए आशा यही आपको बनाए रखती है कि आपको खुश और अंदर से एकदम मनन बना के रखती है कि वो And चीजें होने the वाली हैं। writer of Hebrews says, the writer of Hebrews और इब्रानियों का लेखक ये कहता है in 11:1, 11:1 में, now faith is the substance of things hoped for, the evidence we do not see. और विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं। Two things, faith and hope. दो चीजें, विश्वास If we और have आशा। faith, we have hope. If we have hope, we have faith. अगर हमारे पास विश्वास है, हमारे पास आशा होगी, हमारे पास आशा है तो हमारे पास विश्वास होगा। They're both connected. और दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। And it continues to say, और ये आगे ये कहता है without faith, in verse 6, without 6वें faith, वचन में, it is impossible to please God. विश्वास बगैर परमेश्वर को खुश करना, Because प्रसन्न he करना who मुश्किल comes है। to God must believe and believe that he is a giver of all good things. क्योंकि जो कोई Reward परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि वो हर अच्छी और भली वस्तुओं को देता है। The word of God says, to those who diligently seek him. और वचन कहता है जो कोई दिल और जान के साथ उसकी खोज करता है, For all the things you're hoping for and waiting for, और उन चीजों के लिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और आशा लगाए बैठे हैं, diligently seek him. और ईमानदारी के साथ उसकी खोज कर रहे हैं। But when we don't have hope, और आपको बता दें, जब हमारे पास आशा नहीं है, there is a sense of dread and fear, a sense of desperation. एक डर और एक बेकरारी हमारे अंदर रहती है। And some of us think, what am I living for? और हम ये सोचते हैं कि मैं किस चीज की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। The Bible says, hope deferred makes the heart sick. Hope deferred makes the heart और sick. ऐसा चीज आशाहीन जो दिल रहता है वो दिल को बीमार करता है। Because we are waiting for things to change and they are not changing. और आप इंतजार कर रहे हैं चीजें बदलने का, पर चीजें बदल नहीं रही हैं। And sometimes we ourselves as God's people lose hope. और हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी कई बार आशा खो देते हैं। But this we know, our hope is in Jesus. पर हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारी आशा यीशु मसीह में है। But there are multitudes out there who don't have hope for anything. और भीड़ों की भीड़ है जिनके पास ये आशा प्रभु यीशु मसीह की नहीं है, Walking aimlessly. और बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। No hope for marriage, no hope for children, no hope for finances to change, no hope for careers. और अपने कार्य को लेकर के कोई आशा नहीं, अपने परिवार को लेकर आशा नहीं, अपने काम को लेकर कोई आशा नहीं, अपने शादी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने पैसों को लेकर कोई आशा नहीं। And because we are in the world, we get sucked in with them. और क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो इन्हीं बातों में हम खींचे चले जाते हैं। But this is not God's intent for his people. पर ये परमेश्वर का लक्ष्य नहीं है उसके लोगों के लिए। He wants us to have goals. He wants us to have vision. वो चाहता है कि हमें हमारे लक्ष्य रहे, वो He- चाहता है हमारा दर्शन रहे, Yeah, he wants to give us hope और वो हमें आशा देना चाहते हैं। in this very dying world. और इस मरते हुए संसार में
A small thing shall be 1,000. एक A little thing shall be a mighty nation. एक छोटे से छोटा व्यक्ति 1,000 बनेगा और एक छोटे से छोटा व्यक्ति एक मजबूत देश बनेगा। He wants us to have confidence and assurance in this. और वो चाहता है इस बात की तसल्ली आपके अंदर हो। Do you have this for your future? क्या ये आशा है आपके भविष्य के लिए? He wants you to have it. परमेश्वर चाहते हैं ये आपके अंदर हो। You know, today, आपको पता है आज nobody wants to travel on Air India कोई भी एयर इंडिया से सफर करना चाहता, because they think by not traveling on Air India, they will add 1 hour to their life. और वो ये सोचते हैं Can कि you put that verse on, Shushma, the verse from Matthew 6:27? और वो ये सोचते हैं विमान के अंदर बैठेंगे तो कुछ भी उनके साथ हो सकता है, उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। Which one of you by worrying can add actually says 1 hour to his life? Okay. और जिस तरीके से वचन ये कहता है, चिंता करने से तुम कौन सी अपनी उम्र में 1 घंटा बढ़ा सकते हो? If we are going to be people like that, then why are we different from the world? अगर हम ऐसे चिंता करने वाले लोग रहेंगे तो क्या हम संसार के लोग से अलग रहेंगे? No, we have to tell them whether you go on Air India or whether you cross the road, anything can happen if it is God's will. तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप एयर इंडिया में बैठ के सफर करें, ये रास्ता पार करते हो, होना तो है जो आपके साथ वो होके ही रहेगा। We cannot add 1 hour to our life. हम चिंता करके अपनी जिंदगी में 1 घंटा बढ़ा नहीं सकते। Better to think of Jesus. बेहतर यही रहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें। I want to just give you the example of Noah. आपको नूह का एक जो है उदाहरण देते हैं। We know the story. He was asked to build an ark. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने के लिए He कहा was था asked to build an ark for the saving of mankind. और उसको बोला गया था परमेश्वर ने एक बड़ा जहाज बनाने के लिए ताकि वो मानव जाति को बचा सके। You know, each of us sitting here, हम में से हर एक जो यहाँ पर आज बैठा है, you have a call of God upon your life. आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बुलावा है You are called to do something. और आपको बुलाया है बड़े चीजें करने। And you might say, but I'm just an employee in a big company. और आप ये कह सकते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी, एक काम करने वाला व्यक्ति एक बड़ी सी कंपनी में। And some of you might say, I'm just a wife and a mother. और कुछ ये कहेंगे कि मैं तो सिर्फ एक आम पत्नी हूँ और एक माँ हूँ बस। I'm a husband, I'm a student. मैं एक पति हूँ और मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। But I want to say to you, और आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह में, your life can make a difference wherever you are. आपका जीवन जो है एक परिवर्तन को और एक फर्क को लेकर आ सकता है जहां कर पे आप जाएंगे। If you're a mother, अगर आप एक माँ है, you're not just raising up children. आप सिर्फ बच्चों को पला बड़ा नहीं कर रहे हो, You're raising the future corporate heads, the lawyers, the doctors, the engineers. This is who you are raising up. आप आने वाले डॉक्टरों को, इंजीनियरों को और आने वाले कॉर्पोरेट हेड्स को आप जो है बना रहे हो, बड़ा कर रहे हो। Maybe you're raising a pastor or a worship leader or a Sunday school teacher. और हो सकता है पासवान को, संडे स्कूल टीचर को और किसी को आप जो है बड़ा कर रहे हो। And if you're an employee, I want to just say, be diligent and be punctual. और हो सकता है आप ऐसे एक कर्मचारी को भी खड़ा कर रहे हो जो अपने समय पर पाबंद रहेगा, वक्त का God has पाबंद called you रहेगा। for this. God has called you for और this. परमेश्वर ने आपको इसी चीज के लिए बुलाया है। If you're a student, just be a hard worker and work and study well. अगर आप एक विद्यार्थी, अगर आप अभी पढ़ाई करो, दिल और जान और मेहनत से आप पढ़ाई करें अभी। The book of Colossians says in 3:17, whatever you do in word or in deed, do it all unto the Lord. और कुलुस्सी की 3:17 ये कहता है जो कुछ भी तुम करो, तुम संसार के लिए करो या खुद के लिए कुछ करो, पर उसे परमेश्वर के लिए करो। Just do it in the fear of God. उसे परमेश्वर के भय के अंदर करो। Noah built the ark for 120 years, as you know. और आपको पता है नूह ने उस जहाज को 120 साल में बनाया। I don't know whether we are going to live for 120 years. और मुझे नहीं पता कि हम 120 साल तक जी भी पाएंगे। But however years God has given you, just do what He has called you to do. और जितने भी साल परमेश्वर ने आपको दिया है उन चीजों को करिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। He's going to use your life to touch somebody's life, and unknowingly you are going to influence them with the love of Jesus. और परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप जो है ऐसे व्यक्तियों के जीवन को छुएं, अनजाने में आप उनके जीवनों को छुएंगे और वो आपके जरिए वो आशीष पाएंगे। It's the ordinary
things of mundane living that He wants us to do faithfully. और वो जो हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो चाहता है कि हम विश्वास योग्यता के साथ जिए। He has opened a door of hope for you. उसने आशा का दरवाजा आपके लिए खोल दिया है। Take your responsibility. अपनी अपनी जिम्मेदारी को ले लो। Whether you're a father and the head of the house which God has called you to provide and care for your family, do it well. हो सकता है आप पिता है, घर के मुखिया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप जो है घर की देखरेख कर सके और जो कमी घटी है उसको आप पूरा कर सके। Your life can make a difference. आपका जीवन परिवर्तन को लेकर आ सकता है। Tell that to one another. एक दूसरे से कहें, My life can make a difference. मेरा जीवन परिवर्तन को लेकर आ सकता है। My life can make a difference. Jack. I love your ponytail. But what are some of the things we face today पर ऐसी कुछ चीजें जिनका सामना आज हम करते हैं that make us feel hopeless? जो हो सकता है हमें आशाहीन निराश कर सके। You know, the uncertainty of life and the future. और हम नहीं जानते कि आगे जीवन में और आगे भविष्य में क्या होगा। When we hear the politics, the political upheaval that is there, and not just in our country, but in so many other countries. और हम राजनीतिक दबावों को देखते हैं जो उसमें वो लोग षड्यंत्र रचते हैं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश भरों में। Sometimes we pain over a family member that is really terribly sick, और हम ऐसे सुनते हैं हमारे परिवार वाले के बारे में जो बीमार है, or struggling with a rebel child or an alcoholic husband. और हो सकता है कि बच्चों से परेशान हो सकते हैं या फिर ऐसा पति जो शराबी है। Sometimes it's just financial constraints and when am I going to get that promotion? और हो सकता है पैसों में आपको दिक्कत आ रही है और ये सोच रहे कि अब मुझे अभी तरक्की कब मिलेगी। You know, we can't live without hope. For all of this, we need hope. We can't live without hope. We need और हम hope. बिना आशा के नहीं रह सकते And we need to have hope for tomorrow. और हमें कल के लिए आशा होना बहुत जरूरी है। We don't go through life just surviving. और सिर्फ जो है जिंदगी को जीने के सिर्फ ऐसे जीने के लिए नहीं निकलते। We need to cope with life being heirs of Christ. हम ऐसे जीवन को जीते हैं उस आशा के साथ कि हम परमेश्वर के जो वारिस हैं। You know, hope आप जानते हैं आशा is not optimism. सिर्फ आपको सकारात्मक रहना उसके लिए नहीं है। You know, optimism is what you think you can do. और सकारात्मक विचार वो होते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, What you can do yourself. जो आप अपने बल पे कर सकते हैं But वो। hope is explicitly trusting in God. और आशा का मतलब ये है कि आप जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा You रखते know, हैं। optimism is not facing reality. और सकारात्मक रहना इसका मतलब ये होता है कि आप सच्चाई का सामना नहीं करते हो, But hope is facing reality. और आशा है वो सच्चाई का सत्य का सामना करती है। You know, optimism is positive thinking. और सकारात्मक सोचना जो कि अच्छी बातों को सोचना होता But है। hope is believing in what God can do for you. और आशा का मतलब ये है कि उन बातों में विश्वास करना जो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। Optimism can be psychological, where you know you keep thinking, I can do it, I can do it, I can do it, but it's not happening. Optimism is और psychological. सकारात्मक विचार ये हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि ये आप अपने मन में ये सोच रहे कि ये मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बल्कि आप उसको नहीं कर पा रहे। But hope is theological. It's based on God's word and what He says. It's based on His character. और आशा है वो परमेश्वर के वचन पर खड़ा है। And coming back to the story of Noah, और नूह की कहानी की ओर वापस आते हुए in verse 7, Noah says, 7वें वचन में ये it कहता है, says of Noah that God divinely warned him, but by which he condemned the world and became an heir of righteousness, which is according to faith. नूह अपने विश्वास के कारण अदृश्य घटनाओं को परमेश्वर द्वारा सचेत किया गया और वो संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का अधिकारी बना। He condemned the world उसने संसार को दोषी ठहराया and became an heir of righteousness, which you and I are. और धार्मिकता का वारिस बना जो आप और मैं हैं। We must be able to cope. We can only cope when we know we are heirs of Christ. और इन बातों में हम तभी मेल खा सकते हैं जब इस बात को हम जान लें कि हम परमेश्वर के वारिस We हैं। are joint heirs. We are co-heirs. What God has given Jesus is ours. और हम जो है जुड़े हुए वारिस हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे को दे दिए गए हैं।
So what did Noah, have to do to become this heir of righteousness? और नूह को क्या करना पड़ा कि वो इस धार्मिकता का वारिस बन पाया? He had to build the ark for 120 years it took. उसको वो जहाज बनाने में 120 साल लग गए। He had to face the mocking and the ridicule and the लोगों ने चिढ़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उसके ऊपर ठट्टा किया क्योंकि वो उस जहाज को बना रहा था। he had to fight his own destructive thoughts in his own mind. Noah, there has been no rain, but now God says there's going to be rain. I wonder what rain looks like. He must have been thinking like that. और वो अपने मन में जो है ये जो विनाश वाले विचार जो उसके घूमते रहेंगे, वो ये सोचता होगा कि परमेश्वर ने बारिश के बारे में बोला है, बारिश तो कभी हुई नहीं, और ये बारिश वाकई में होती क्या है कभी उसने देखा तक नहीं है। I've said this before that the word rain is not mentioned in the first 4 chapters of Genesis, and it only comes when God tells Noah about it. और आपको बता दे कि बरसात के बारे में पहले 4 अध्याय जो उत्पत्ति के उसमें जरा भी जिक्र नहीं है बरसात का, पर जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह को बताता है कि आने वाली बरसात But के each बारे में of those उसे पता चलता है। 120 years he obeyed God. He kept building. 120 साल तक उसने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की बात का आज्ञा पालन किया, और 120 साल तक वो उस जहाज को बनाता गया। Little by little he chipped away. Little by little he did what he had to do. और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उसने बनाया, And he built the ark. और उसने उस जहाज को पूरा बना दिया। This is what you and I have to do every day. और यही आपको और मुझको करना है। You don't know it, but you're building something, आपको पता नहीं है पर आप कुछ बना रहे हैं, and build it knowing you're an heir of Christ. और इस तरीके से आप बनाइए इस बात Little को by जानते little, हुए every day, do something what he calls you to do. Obey him. और धीरे धीरे उन बातों का पालन करना शुरू करिए जो जिन बातों में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Now we are heirs, हम परमेश्वर के वारिस हैं, but we also know that there is hardship. हम इस बात को भी जानते हैं कि कठिनाइयां भी हैं। We know that there will be hardship. हम जानते हैं कि कठिनाइयां भी आएंगी। Why do I say that? आपको ये क्यों बता रहे हैं? Because in Romans 8:17 it says we suffer with Christ. We suffer with him. और रोमियो की किताब में ये रहता है कि हम मसीह के साथ जो है दुख भोगते हैं, So that we are also glorified with him. ताकि हम उसके साथ में महिमान्वित भी हो जाएं। Sometimes all of us don't have physical hardships, but the mental ones are very tough. और जो मानसिक तौर पे जो कठिनाइयां होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। And so there's a shared experience of hardship, but knowing there is going to be triumph. और हाँ, एक ऐसा दौर रहता है जहां पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर एक ऐसा भी दौर रहता है जहां पर आप We जीतते are हैं, going जयवंत to होते be हैं। glorified with Christ. Isn't that beautiful? और हम मसीह के साथ महिमान्वित भी किए जाएंगे। क्या ये अद्भुत है कि नहीं? Jesus said यीशु ने कहा in John 16:33, यूहन्ना की किताब उसका in 16वां this अध्याय world 33वां you will वचन। have trouble, but take heart, I have overcome the world. और वो ये कहता है कि संसार में, और वो ये कहता है कि संसार में तुम्हें कष्ट होंगे, पर अपना दिल बांध ले क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। And the realities of life is full of obstacles. और जीवन का मतलब ये है कि बहुत सारे रुकावटों से भरा हुआ है। Even though, और इसके बावजूद भी listen to this promise, इस वादे को आप सुनिए, you shall have life in abundance. आपके पास जीवन होगा, जीवन बहुतायत का। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? He says you will have life in abundance, आपके पास बहुतायत का जीवन होगा, but you will also suffer with Christ. पर आप मसीह के साथ दुख भी भोगेंगे। There will be hardships where you will be pressed down and, chucked away. और ऐसा भी समय रहेगा कि आपके पास मुश्किलें आएंगी और आपको एक तरीके से आपको जो है दुत्कार दिया जाएगा। But you will also be glorified with him. पर अब ऐसा भी समय आएगा जहां पर आप यीशु मसीह के साथ महिमान्वित किए जाएंगे। And today also, like Noah, you will face certain things like he faced. और नूह के जैसे आप भी उन चीजों का सामना करेंगे जैसे You उसने will सामना face किया। people laughing at you. You will face accusations. You will have all of that.
और नूह के जैसे लोग आपके ऊपर भी हंसेंगे, But आपका come भी on मजाक now. उड़ाएंगे। But come on, we have the word of God. और देखिए हमारे पास परमेश्वर का We वचन have है, his promises. हमारे पास उनके प्रतिज्ञा है। We have his word which will never pass away. ऐसा वचन है परमेश्वर का जो कभी नहीं टलेगा। We are heirs of Christ. हम मसीह के वारिस हैं And we have become heirs of the promises of Christ. और हम जो है उसके वारिस हो चुके हैं उसके वायदों में। And the heirs of the promises of Christ know how to cope with like heirs. और जो लोग मसीह में वारिस हैं वो इस बातों को जानते हैं कि उन वादों में कैसे बने रहे। But guess what? We are still waiting. सोचिए क्या हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। I have a promise. मेरे पास वो प्रतिज्ञा है Caleb will enter the promised land. कि केलेब जो है उस प्रतिज्ञा की भूमि में अपने पैर रखेगा। I'm still waiting. और अभी भी आंटी इस बात का इंतजार कर रहे But हैं I am waiting knowing that his promises are true and amen. और इस बात को लेके वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन है। There is no evidence. There is no evidence. इसका कोई पक्का सबूत नहीं है But things are happening. पर चीजें हो रही है। He is doing something inside वो अंदर कुछ कर रहा है which I cannot see. जो मैं नहीं देख सकती। And I just want to conclude with this और इसके साथ मैं खत्म करूंगी with regards to hope. इस आशा को लेकर। Romans 8:24 and 25. रोमियो 8:24 और 25। Can we have that? For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? इस आशा से हमारा उद्धार हुआ है, यदि कोई यह बात देखता है जिसकी वो आशा करता है तो यह आशा नहीं कही जा सकती। मनुष्य जिस वस्तु को देख रहा है उसी की आशा क्यों करेगा। And the next one. But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अभी तक नहीं देख सके हैं, इसीलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। And it says in 2 Corinthians 4:16 that the outward man is perishing, but the inward man is being renewed daily. और 2 कुरिन्थियों 4:16 ये कहता है कि बाहरी मनुष्य जो है वो तो नाश हो जाएगा पर अंदरूनी जो व्यक्ति है वो हर दिन नया बनता है। What is the inward man? और जो अंदरूनी मनुष्य है वो क्या है? Perseverance, वो है धैर्य, endurance, और वो जो बना रहता है, सहनशीलता जिसमें रहती है, सहन करता है, patience, जो धीरज रखता है, strengthened in faith, अपने विश्वास में मजबूत बनता है hoping and knowing God's going to do it. और इस बात पर आशा लगाई बैठता है कि परमेश्वर करेगा। And it continues to say in 2 Corinthians 4:16 और वो ये कहता है 2 कुरिन्थियों 4:16 में that we see with spiritual eyes the unseen things he is doing, which are permanent and eternal. और वो जो है वो हम अंदरूनी आंखों से उन आत्मिक चीजों को देख सकते हैं जो चीजों को वो कर रहा है। We do not see with this naked eyes, हम ये जो शरीर की हमारी जो आंखें उनसे हम नहीं देख सकते, which is temporary and passing away. जो थोड़े समय के लिए और चली जाएंगी। But we wait in confidence and we see the unseen things God is asking us to see. We hope and see what we cannot see. और हम अपनी आत्मिक आंखों से जो नहीं दिखने वाली चीज है उनको देखते हैं जो होने वाली, जो परमेश्वर करने वाला है। So when you're down और जब आप नीचे हो and when you're disturbed by some latest news, और जब आपका मन जो है बड़ा एकदम असमंजस में हो, जब आप कोई ऐसी खराब खबर को सुनते हो, hope in God. परमेश्वर में विश्वास He रखिए, has आशा a great रखिए। hope for us. He has a- उसके पास हमारे लिए बड़ी आशा है। His promises is, I'll never leave you nor forsake you. I have plans to prosper you, not to harm you, to give you a hope and a future. This is what he says about us. और मसीह के पास हमारे लिए आशा है और वो ये कहता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी इतना तुम्हें त्यागूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी सी योजना है, And not- तुम्हें ना हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा भविष्य देने के लिए है। And not one word will return to him empty. It will be accomplished. It will be bear fruit here on earth.
और एक भी शब्द उसका खाली लौटकर उसके पास नहीं आएगा, बल्कि उसका जो शब्द है वो जाएगा, उन बातों को पूरा करेगा और अपना काम पूरा करके परमेश्वर के पास आएगा। So as we are hoping and waiting, let's also see. As we hope and wait, let's also see. और जैसे हम इंतजार कर रहे हैं आशा लगा के, आप देखें, See the unseen things. उन चीजों को देखें जो अनदेखी हैं। Believe the unseen things. Confess the unseen things. विश्वास करें, बोले जो चीजें नहीं दिख रही, जो अनदेखी चीजें, उनको आप देखें, उन पे विश्वास करें और उनको बोले। All the promises he's given you, hold on to them. Don't let go. Don't let anyone take it from you. और जो कुछ वादे परमेश्वर ने अपने आप सभी को दिए हैं, उसको कोई ऐसे लेकर ना जाए, उसको आप ऐसे छोड़िएगा मत। All right, I'm just going to put Jeremiah 1:11-12, and we are going to just say a prayer together. और निकालेंगे हम यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 11 से 12वां वचन। I like this verse. It's 11 and 12. Okay, Sushma, 11 and 12. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. प्रभु का यह संदेश मुझे मिला। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा, यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे बादाम वृक्ष की एक शाखा दिखाई दे रही है। And the next verse says, and the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. तब प्रभु ने मुझसे ये कहा, तूने ठीक देखा, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। I want you to take this word away with you today. और मैं चाहता हूं कि ये वचन का आप अपने साथ लेकर जाएं। Can we stand and let's pray, because God is going to perform his word which he has given you. और आइए हम खड़े हो जाएं और इस बात को जाने कि जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। Amen. 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 Yes. Father God, we come to you this morning, each of us, with our promise that you have given us, your promises you have given us. And we ask you, Father, that every single promise and every single word we are hoping and waiting for, you will perform it as we see the unseen things you are doing in and through our lives. Amen.